School, Bhagwanpur. I also welcome our Honorable Headmistress Ma'am to gracing us with her presence. Dr. Pandey, not only a passionate researcher, but also an educator and a mentor who is dedicated to empower the next generation of innovators and currently working as a research associate at IIT Jodhpur. He has completed his master's and PhD in physics from prestigious Banaras Hindu University. His journey reflects an inspiring blend of scientific rigor and social commitment. He has worked with ISRO, where he gained hands-on experience in lithium-ion battery fabrication and contributed to the VSSC RESPOND project of hydrogen storage material for space application. His research training also includes time at IGCAR Kalpakam, IIT Mumbai and IIT Delhi, strengthening his expertise in advanced energy systems. Dr. Pandey specializes in design and synthesis of advanced nanoporous materials for hydrogen storage and other clean energy applications, a field that directly supports India's vision for a sustainable hydrogen economy. Beyond his laboratory achievements, Dr. Pandey is passionate about science outreach. He has delivered 5 invited talks to the scientific community and regularly interacts with school and college students to make science more relatable through real-life examples. As also being Managing Secretary of ONS Educational Trust, he actively promotes science education and innovation. His motivation lies in training young minds for a sustainable and self-reliant future, inspiring students to explore research, innovation, and entrepreneurship. Recently, he was also invited to the MIT WPU Adaptive podcast for his contribution towards popularizing science and promoting India's startup ecosystem. A true believer in learning by doing, Dr. Pandey uses his research in hydrogen energy and batteries as a tool to ignite curiosity among students, providing that science is not just a subject, but a way to build a better world. Now I would request our Headmistress Ma'am to felicitate our guest. बहुत सारी चीज बता नहीं सकता, इसलिए 2 घंटे का इंटरेक्शन रखा था, लेकिन इट्स बैड लक और आई डोंट नो इट्स अ गुड लक बिकॉज़ सम ऑफ यू मे गेट बोर आल्सो, बोलेंगे ये कौन है सामने, है ना, 1 घंटे कीमती लाइफ में जा रहे हैं. अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू सो मेनी स्टोरीज ऑफ फिजिक्स विद इन माय लेक्चर, बट आई एम मेकिंग श्योर अंडर दिस educational trust someday I will be here with demonstration with many more things, but for this time in this within 45 minutes I will be delivering you, I will be touching you what really I need from you guys, okay, because you youngsters, we as Indian looking that you are going to be the future of us, right? How many of you would be future of us? Oh, सब कुछ करना चाहते हैं देश के लिए. चलो, अब बीच में हाइड्रोजन सर लेक्चर देते हुए दिख रहे हैं, हाइड्रोजन डे भी मनाया जाता है. ऊपर शायद उस फिगर से आपको क्लियर होगा, सर ने जब पद्मश्री पाई है ना, पद्मश्री यू नो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो ही गॉट दिस. ही वाज भटनागर रिस्पेक्ट आल्सो. यू माइट बी नोइंग कि इंडिया के लिए भटनागर अवार्ड नोबेल प्राइज है, राइट? इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड. एंड देन बगल में ऑफ कोर्स मैं उनका छात्र और अभी फिलहाल में आईआईटी जोधपुर में एज ए रिसर्च एसोसिएट काम कर रहा. कुछ पिक्चर्स कराई गई है, एक तो महामना की बगिया की जो आपकी दीवार के उस पार है, आप जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके नीचे आईआईटी जोधपुर का एक क्लास है, और बीच में मैं एक अनोखी बाइक के साथ खड़ा हूं जिसका पूरा शेप हाइड्रोजन मैन ऑफ इंडिया को जाता है. वो बाइक जो वर्ल्ड अभी बनाना चाह रहा है, लेकिन वी डिड इट. भी मतलब सर ने अपनी टीम के साथ, उसमें गंगाराज जी भी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे लैब भी देखा करते थे,
शंकरलाल जी भी हैं जिनकी कुछ दिन पहले डेथ हुई, नहीं तो वो भी आज आपको दिखते हैं। इन लोगों ने मिलकर वो बाइक बनाई जो बड़े बड़े इंजीनियर बनाने के अभी क्या कर रहे हैं, कोशिश, और उसमें कोई भी पेट्रोल टंकी नहीं है। पेट्रोल मींस इट्स नॉट सोल्यूशन। ईवी को तो सबको पता चल गया, इसीलिए ईवी को मैं थोड़ा टच करूंगा। ईवी मींस बैटरी से तो बाइक अब सबको समझ में आ रही है, बैटरी से हाँ चल जा रही है, बहुत सारी ओला है, कई सारे वेरिएंट आ गए। हम लोगों ने बिना बैटरी यूज किए पेट्रोल टंकी इसमें से हटा दी है। एक बड़ा थोड़ा सा पिक्चर बड़ा आएगा इसके बाद। बिलीव कर ले, विश्वास नाम की चिड़िया जाते हैं सब, अभी बिलीव कर ले कि पेट्रोल टंकी नहीं है, ठीक है। अदरवाइज किसी दिन टाइम मिला तो आप बीएचओ में जाके 20-20 बाइक्स ऐसी खड़ी है जहां पेट्रोल टंकी नहीं है। जिसपे मैं बैठा हूं उसमें हाइड्राइड टैंक है। हाइड्राइड टैंक में हाइड्रोजन स्टोर होता है, उस हाइड्रोजन से क्या है, जैसे कमर्शियल उद्देश्य ये है कि आप सब अवेयर हो कि जो दुनिया हाइड्रोजन की बात करे, हाइड्रोजन सुन रहे हैं ना आप लोग, सुन रहे कि नहीं? कभी गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, कभी नई एक्टिविटीज आती है। अब तो जो केमिस्ट्री ज्यादा पसंद करते होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये बात बड़ी अच्छे से पढ़ाया जा रहा है ताकि कल के फ्यूचर में बच्चे समझ सकें, ठीक है, कि भाई ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। अब पता नहीं कितना कर पाएंगे, वो तो लास्ट में आप ताली बजाएंगे तब पता चलेगा कितनी एनर्जी थी मेरी और या क्या कुछ अंदर गया। तो मैंने चैटजीपीटी से पूछा मुझे डिजिटलाइजेशन भी चाहिए, मुझे नॉलेज भी इंडियन मेथोडोलॉजी के थ्रू दे रही है, और बच्चे भी इतने प्यारे प्यारे हो, जितने प्यारे प्यारे ये दिख रहे हैं, क्या पता अंदर से प्यारे ना हो, आप थोड़े शैतान हो, बट आई डोंट हैव एनी इशू बिकॉज़ मैं तो कुछ देर का मेहमान हूं, राइट? हाँ, अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा तो कभी और भी मेहमान बनूंगा बिकॉज़ इट इज माय होम टाउन। नाउ नेक्स्ट, आप नीचे की फोटो देखेंगे तो ये सर के साथ हम लोग हाइड्रोजन एनर्जी का बैनर लेके खड़े हुए हैं। हम फ्लीट लेके चलते थे प्रोमो देने के लिए। प्रोमो समझते हैं? पिक्चर्स की प्रोमो तो सबको पता होगी, है ना? कभी भी कोई भी प्रोमो देने आ जाता है, ठीक है। आपके स्कूल में भी कई बार प्रोमो देने कोई ना कोई सेलिब्रिटी तो आया ही होगा, आप बुलाए होंगे पे करके, हम यहाँ पे करके नहीं आए, टू बी ऑनेस्ट, नो प्रोमो फॉर सम एनी काइंड ऑफ पेमेंट। वो प्रोमो देके आते, हम वो प्रोमो इसलिए खड़े थे कि दुनिया जान जाए कि व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली दैट विल बी द फ्यूचर। हाइड्रोजन एनर्जी ही कल का फ्यूचर होगा। अभी बैटरी भी है रेस में, मैं बैटरी पे रिसर्च कर रहा हूं, इसलिए बैटरी को दरकिनार नहीं कर सकता, आई कांट साइडलाइन दैट, ओके। द नेक्स्ट वन इज वो बैटरी से चलती हुई एमैट आईटीजे का लोगो जलता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट, आपकी बिल्डिंग, मैंने कहीं से आपके स्मार्ट स्टूडेंट के अपलोडेड फोटो को कैच किया और यहां लगा दिया ताकि कि आपको दिखे। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने जानबूझ के चित्र दिया लगा रखा है। हाँ, हिंदी कितने लोगों को अच्छी लगती है और कितने लोगों को लैंग्वेज जो टॉक चले वो केवल इंग्लिश चले ये अच्छी लगती है? अरे वाह, ये तो बड़ा सुखद है, मतलब आप हिंदी ज्यादा पसंद करते हैं, है ना? कोई नहीं, तो लैंग्वेज है उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश अच्छी आती है और आप सबसे अच्छे स्कूल से, यू आर द लकीएस्ट वन और द एलीट क्लास इन दिस बनारस वेयर यू पीपल आर सपोज्ड टू कि आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, राइट? और ऐसा मैं मान के चलता हूं कि चूंकि लैंग्वेज इसकी कहीं ना कहीं यूज होगी, पार्डन फॉर दैट, अदरवाइज कोई भी जोक या चुटकुले होंगे, कोई भी इंग्लिश का जोक मैं नहीं मारूंगा और जो हिंदी के भी मारूंगा वो आपको कैच करना पड़ेगा, कब मार दिया पता नहीं चला, है ना? तो नेक्स्ट इज ये फोटो देख के, और जब ये पद्मश्री मिला था उस टाइम की फोटो ली गई है। और पद्मश्री पाना ऐसा ही है जैसे आपने जीवन में कुछ ऐसा कर लिया हो, जैसे आईएएस बनते तो खुशी होती है, बने तो नहीं होंगे, लेकिन माइट बी सम ऑफ यू would be having relatives, right? जिनका बड़ा थोड़ा सा so called this young chap, he talks to me regularly on phone कि वो मेरे भांजे हैं, इसे कि मामा पता है उसका ऑरा दिखता है, so I feel like अच्छा ऑरा कुछ होता है। मैंने कोशिश करी तो एक बार इन्होंने मेरे को चलते हुए दिखाया बाइक पे, देखिए ना उसके जो उसकी कार है ना, उसके ब्रांड के नाम पे क्या लिखा है, ऑरा। मैंने कहा ओ ऑरा ये है। मैं तो पहले स्टील गाड़ियों वगैरह वगैरह तो ये सोचता था, आज की डेट में ऑरा बड़ा मायने रखता है। तो जो ये पद्मश्री का ऑरा है ना वो एमी नहीं मिलेगा, ठीक? यू हैव टू डू हार्ड एंड दैट इज माय मोटिवेशन थ्रू दिस एजुकेशनल ट्रस्ट कि आप यदि आज इससे कुछ भी ले जा सके घर, कितनी मेहनत करनी होती है। शाहरुख का डायलॉग नहीं मार सकता, लेकिन कहते हैं ना क्या, शिद्दत, समझ गए है? बाकी तो सब आप जानते हो ना, बिकॉज ये शिद्दत से आप सच में काम करोगे तो कायनात वाली बात सच हो जाएगी। तो आपको पढ़ना है, कुछ बनना है, संदीप भगवानपुर का एल्यूमिनस टैग लेके यहाँ पर एज ए गेस्ट एंट्री करनी है, लेकिन उसके लिए एक एनर्जी चाहिए। हाउ इज द जोश? ओ
ग्रेट, नेक्स्ट। ये थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड आपको मे भी लग सकता है कि थोड़ा सा आराम से बात कर रहा, लेकिन ये सारे इंस्टीट्यूशन जो आपको दिख रहे हैं इनकी ट्रेनिंग बहुत ही टफ है, आपको पता होगा, आपने सुना ही होगा। बीएचयू में एडमिशन पाना भी ठीक ठाक अच्छा लड़का ही जाता है, ऐसा मानते हैं। उसके बगल में जो इंस्टीट्यूशन है आईआईटी कलकत्ता, आई हैव बीन देयर, आप शायद जानते हो या ना जानते हो, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है जहां बनाएगी न्यूक्लियर एनर्जी का ये सेंटर है। तीसरा, इसरो में मैं पीएचडी के दौरान रिस्पॉन्ड प्रोजेक्ट फेलो था, जहां पर हाइड्रोजन के लिए मेरे को काम करना था, और अभी आईटी जोधपुर में मैं हूं, ठीक है। ये बाइक दिख रही है, अब बाइक दिखी क्या थोड़ी? अभी पेट्रोल टंकी कितने लोगों को दिख रही है इसमें? हाथ उठाओ। छह की आंखें किसकी है? How many of you are having a 6x6? Do you understand the physical meaning of it? I started talking about ISRO, and you know, when I was doing PhD, I got opportunity to be there. I have not kept photos from there because that is restricted. You might be knowing of inside, but so many things I can give you from there. Because what are the catchy things for you guys? Oh, ISRO, IIT Bombay, IIT Delhi. Means who is very passionate for engineering and research. Who is not passionate, he would be, oh my god. Maybe some of you would be aspiring to become Modi ji. How many of you aspire to become Modi ji? Means Prime Minister. No? How many you really? Yeah, that's good. How many you means, can you know the strength of 11th class? 11th. How many of you are in there 11th? Oh, a good number. So how many of you want to be a good engineer like Sundar Pichai and all? Raise your hand. Don't see whether the next one is what he is doing. Okay. So good number. So can you see? Can you see this slide? Yes. There are a number of things in this slide because time was the child has taken birth, right? Of Gen Beta. You know, how many of you are aware of Gen Beta is with us? At least few of you. There will be less number of letters after some days. Alpha, beta, gamma, delta. The Greek who are there at upside of us, they will be very surprised what to give next. Because so fast the technology is moving. Do you agree? The technology is moving so fast, right? So what to do with? Why not to be in race? And not race, not like of turtle. हाँ, किसको किसको खरगोश करना पसंद है? वो सोने वाला नहीं, सीधे रेस जीता है of ChatGPT, almost everyone. I know. At least इतने नंबर उठ जाएंगे. How many of you are aware of notebook LLM? AQI इंडेक्स इतना पुअर होता था कि स्कूल का जो ऑरा था उससे डिसाइड हो रहा था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको क्या करना है, स्कूल को बंद रखना है, क्योंकि ये स्कूल कैसा है, ऑरा वाला। वहां के बच्चे देयर वाज नो ड्रेस कोड, राइट? सो वहां के बच्चे देयर वाज नो बैग्स, राइट? तो उनका मानना था अगर नाक में गलती से कुछ पार्टिकल चले गए पीपीएम लेवल के, पीपीएम यू नो पार्ट्स पर मिलियन, तो उन्हें सफोकेशन हो जाएगी। व्हाट अबाउट अस? भगवानपुर की रोड, वो गाय के, राइट? और हमारे बीएचयू से समझ रहे हैं आप, है ना? मैं आपको केवल इससे इंसाइट ये दे रहा हूं कि AQI इंडेक्स से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि स्कूल तक को क्या करना पड़ा, बंद। और वो हम क्रिएट कर रहे हैं नोइंगली और अननोइंगली। पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपने मम्मी पापा के साथ आप घर पे जाइए, अगर कहीं गली कार से जाना बहुत जरूरी ना हो तो हम अवॉइड करें और रोड ट्रांसपोर्टेशन ले, या तो एटलीस्ट एक्टिवा या बाइक से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करें। आप उसमें मम्मी पापा को नहीं समझा सकते, देयर आर सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड ऑल, बट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कभी भी फोर व्हीलर का यूज, हाउ मेनी विल कन्वे दिस टू योर होम? You should think of young scientist award, right? One of that photo is when I am receiving that award. The last one means when you will look the last left side, okay? And बीच में आप समझ सकते हैं टॉप के दौरान ये bit tricky.
आई थिंक आर यू अवेयर ऑफ दिस टू पिक्चर्स? एक तो बताओ, एक तो मॉडल में लगा हो कभी ना कभी, वो बहुत ऊंचा ऊंचा गर्दन करके देख रहे हैं, दिखा? व्हाट इज दिस? कोई दूसरी माइक पहुंचा सकता है क्या उस साइड पे? हाँ, कोई दूसरा माइक पहुंचा सकता है? क्या है ये? लेफ्ट साइड वाला फिगर? भाई मैं तो एक सेशन इंटरेक्शन के लिए रखने वाला था, वो तो टाइम बच गया तो मैं दोनों एक साथ कर रहा हूं। हाँ, सी इज रेडी नाउ, जस्ट लिसन। या नहीं, अभी अगर हम कार से ना आए, लेट्स से अगर मैं यहाँ ड्रॉप ना करूं तो मेरे को कोई बोलेगा ये कौन सा आदमी आ गया टॉक देने, नहीं? तो हमें ऑरा क्रिएट करने के लिए वो सामने आपके स्कूल के लास्ट एंड पे क्या खड़ी करनी है? मर्सिडीज बेंच, राइट? ऑरा होगा ना, और सर आए थे, पता है, यू नो, ओ भाई क्या बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा कुछ अच्छा, लेकिन वो मर्सिडीज बेंच बोल रही है, क्या बोल रहे थे? और लेट से गलती से अगर मैं आ गया, हमारे जैसे सर आते हैं अशोक सेन सर, कैफरी में और ऊपर लोअर डाले हुए, टी शर्ट लोअर डाल के वो टॉप देने चले जाते हैं। पहली बार हम लोगों ने देखा, मतलब अरे यार उनका तो पूरा बाल वाल लगाया गया है, मिमिक करते ना। कोई ऐसा है जो जिसने आज तक टीचर के पीछे मिमिक्री नहीं करी? कोई हाथ उठा दे। अरे दो ईमानदार बच्चे, मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि केवल 3 ऐसे बच्चे हैं जो ईमानदार नहीं है, बाकी सब ईमानदार हैं। मतलब सबने मिमिक्री पीछे की होगी, राइट? राइट और रॉन्ग? लेकिन 3 बच्चे ऐसे जिन्होंने हाथ उठा दिया। नहीं, ऑनेस्टली आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट, कीप ऑन दिस लेगेसी, बिकॉज बनारस में कल्चर के लिए हम जाने जाते हैं। अगर हम नई मिमिक्री करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो करते हैं उनके लिए मेरी जबरदस्त ताली, क्यों पीछे स्टैंड अप कॉमेडी प्लस आप नहीं करते उनके लिए इनसे जो जाता है। पेट्रोल का जो फाइनल फॉर्म है वो क्या है? CO2 है। मोर कार्बन एमिशन, आप शायद नेट जीरो 2070 का कॉन्सेप्ट सुन रहे होंगे, या कभी किसी लेक्चर में टीचर ने या फैकल्टी ने बता रखा होगा। हमें ओवरऑल कार्बन को क्या करना है? एक न्यूट्रलाइज लेवल पे रखना है। एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन कैन क्रिएट, बिकॉज जो CO2 होता है इंफ्रारेड IR रीजन में एब्जॉर्ब करता है। IR तो जानते होंगे, वही रिमोट वाली बात, वो जो IR आता है, आप शायद सुने होंगे डिप्लीशन, ओजोन लेयर, ये यहीं से आता है। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है, ये दिखाना चाहता हूं कि इंडिया में नहीं, ग्लोबली ये बहुत कम है, उसको बढ़ाना है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब डिप्लीट करने के बाद आप उसको संभव क्रिएट कर सके, जैसे कि हाइड्रोजन। फाइनल प्रोडक्ट आपको पता है क्या है? नहीं पता, और ना ही अब मैं बताने वाला हूं। एक क्विज के तहत बताऊंगा, जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगा। ये क्या होगा? ये कुछ दिख रहा है? एक हाइड्रोजन इकोनॉमी। अगर ये हाइड्रोजन चल जाए तो पूरी दुनिया बल्ले बल्ले कर सकती है। कैसे? हमें पेट्रोल की जरूरत है, ठीक है? नेक्स्ट, फैक्ट्रीज में बहुत जरूरत है एनर्जी की, क्या रिप्लेस की जा सकती है? हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन, क्या हो रही है? नया अपडेट क्या है? जो हमारे यहाँ गैस सिलेंडर्स लगते थे, जैसे पेट्रोल को रिप्लेस किया गया CNG, वैसे कुछ अच्छे कार्बन के फॉर्म। आपको पता है C4 से C40 तक ये जो सारे कार्बन है कहीं ना कहीं से एनर्जी क्रिएट करते हैं, इनका एक कैलोरीफिक कंटेंट होता है। लेकिन अभी अगर इनकी बात करेंगे तो हाइड्रोजन से आप भर के गैस जला सकते हैं। किसे? गैस। चैलेंजेस क्या है? हाइड्रोजन आपको से आप 6/6 की किसकी आंखें थी? लास्ट टाइम तो हाइड्रोजन देखा नहीं देखा? अच्छा, लास्ट टाइम किसने की चीज जो वर्चुअल होती है आप बिलीव कर लेते हैं, तो मैं ये रियलिस्टिक बोल रहा हूं, तो आप बिलीव कर लीजिएगा। इस दोनों टर्मिनल पे लगा ठीक है? ये बैटरी के लिए दिखा रहा हूं। हाइड्रोजन की जैसे बात बताई, क्योंकि वाइट कैंपस में लाना पॉसिबल नहीं था। कितनी आ रही है? टर्मिनल उल्टा, ठीक है? 4.6 मैम है आपकी एज अ एविडेंस, 4.67 वोल्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है? और ये ऐसा मॉडल है, मैम आ रहा है, फोटो ले लिया आप क्लोजर आके फोटो ले लीजिए। ये फोटो इसलिए ले रहा ताकि आप सबको बिलीव हो जाए कि 4.67 वोल्ट जनरेट हो रहा है। ये मॉडल हमने नहीं बनाया, हम बना के नहीं लाए, हमने जानबूझ के आप बहुत सारा साइंस प्रोजेक्ट में, लेकिन रियलिस्टिक मॉडल ये है। एक सिनर्जी नाम की कंपनी आप जाइएगा, IOCL जानते हैं आप?
इंडिया की एजेंसी जानते हैं, गैस पेट्रोल और ये सब जानते हैं। तो जो वो एजेंसी देखती है वैसे ही हमको यहाँ पता चला बैटरी आप जो फैब्रिकेशन इंडिया के लिए हमारे भावेश अग्रवाल जी जो ओला के फाउंडर माने जाते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग बैटरी की नहीं थी, राइट। हमारे पास थी तो लेड एसिटेट बैटरी की, जो कि कोई कॉमन मैन बना सकता था, लेकिन आपको पता है लेड एसिटेट की बैटरी कॉमन उसे हर कॉमन व्यक्ति खोल नहीं देता। बैटरी इन्वर्टर जितने लोगों के घर में होगी उनको सबके घर में होगी, सीधे रिप्लेस होती है। हैव यू हर्ड दिस? बैटरी क्या होती है? सीधे रिप्लेस होती है। लेकिन अगर ऐसी टेक्नोलॉजी रहती, हमारा इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग होता, तो धीरे धीरे कुछ ही टाइम के बाद सारे लोग क्या हो जाते? सीख जाते। सारे लोग सीख जाते तो हर कोई बैटरी खोल के लेड एसिटेट की। मैं तो सोच रहा था कुछ बैलेंसिंग हो, मुझे तो ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम तुक्के में तो चक्कर में नहीं है। इधर की ऑडियंस एक भी चॉकलेट नहीं ले गई अभी तक, है ना। ये हमारी कास्ट, हमारे ये, ठीक है। और लास्ट में अगर एक्सपेरिमेंट ये वाला करना चाहें तो कैसे आप हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके एज में अभी मोबाइल नहीं होता, अदरवाइज मैं बोल देता कि इसे आप क्लिक कर लीजिए। लेकिन ऐसी कोई भी स्लाइड हो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल पे कभी भी रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये कुछ यूट्यूब है, आपको बस अपने मैंने प्लीज ठीक है, अच्छा लगा? पक्का? फिर मिलते हैं कभी। किसी का एक क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? तो अगर किसी के मन में बहुत कुछ हो आप पूछ